Hello dear students. Before going to the introduction of SN1 reaction, SN2 reaction, SNI reaction, SNTH reaction, SN aromatic reaction, E1 reaction, E2 reaction, you need to know about leaving group. First of all, you should know what is a leaving group. That is very important. So let us discuss today first leaving group. What is a leaving group? Better, the group which leaves the entire system creating a carbocation, we call it as leaving group. And who can be a good leaving group? A good leaving group is someone which is having a better stability. Who can be a stable? Remember the thumb rule: weaker bases are good leaving group. What is that? For example, if you have something like this, R CH2 G. If this G leaves the system as G minus, creating R CH2 plus, then this G minus is a leaving group. Then this G minus is a leaving group. Who can be a good leaving group? A good leaving group can be someone which is having stability. If it is stable, then it can leave the system. So weaker bases are good leaving group. Always remember this golden rule: weaker bases are good leaving group. For example, you can go for some examples also. For example, if you have OH minus and H2O, who is a good leaving group? Obviously, water is a good leaving group. So leaving group character किसका ज्यादा होगा? Water का. If you have NH2 minus and ammonia, who is a good leaving group? Ammonia is a good leaving group than NH2 minus. Who is a, now if you have HS minus and H2S, who is a good leaving group? H2S is a good leaving group. So out of, we find that out of water, ammonia and H2S, the good leaving group are someone which are weaker bases. Weaker bases are good leaving group. For example, if you have phosphine and ammonia, who is a good leaving group? Again, phosphine is a good leaving group. Okay, so good leaving group are someone which are weaker bases. Let me tell you some more examples on this. Some more examples. For example, you have something like this: CF3 S double bond O double bond O minus. Is it a good leaving group? Obviously. Why? Because it is a quite stable base. Why it is stable? Because this minus is delocalized in this oxygen. This minus over this oxygen get delocalized over here. So it is a quite stable group. And added to that, there are fluorine which are electron withdrawing. So stabilizing this system. This is called triflet ion. It is a very, very good leaving group. We call it rather super leaving group. In literature, they say it as super leaving group. Okay. Beyond this also, another leaving group is also there, which is also more famous than this and also a better leaving group than this: C4F9SO3 minus. Okay. So this is also called a super leaving group. So these two are examples of leaving group. One more example of leaving group. One more famous example of a leaving group is CH3 S double bond O minus. This is called tosylate ion. Okay, it is sometimes also represented as this manner. For this, they write it as TS O minus. This is also a very, very famous leaving group. Okay, this is called tosylate ion. Do you know? I can increase the leaving character in this manner also. SO3 minus
to this, if I add a NO2 group, so this is called nitrogen is NO2 is having a derivative of this tosylate. So what can I say this name as? This is called nosylate ion. This is also a good leaving group. If I write here SO3 minus, and this is bromine minus, I effect of bromine is there. This is called brosylate ion. This is also a good leaving group. If it is like this, SO3 minus only, this is known as only benzene is there, besylate ion. Okay, now if I write here SO3 minus, and this is CH3, this is tosylate ion. Now who is having more, who is a better leaving group? Obviously this, then this, then this. Okay, so who are leaving groups? Again I'll repeat, weaker bases are good leaving group. This is a golden rule you should remember. Weaker bases are good leaving group. Okay, let us find, there are some groups which are not good leaving group, but we can convert those groups to be a more, we can convert that groups to be a good leaving group. Example, let's go for some examples. We can convert some groups to good leaving groups. How? Now, examples. For example, we can write here some groups which can be converted to good leaving group. Some groups which can be converted to good leaving groups. For example, we have alcohol. Now, this OH is not a good leaving group. Okay, how can I convert this OH to a good leaving group? I will make this attack by H2SO4 dilute, obviously, and this will provide what? H plus. The electron pair present over this OH will attack this H plus, forming what? R O H H, this one plus. Now this is what? Protonated alcohol. This is called protonated alcohol. Now what will happen in the next step? This R will give electron to this. Now what happens? Now this water we have discussed now. Waters are good leaving group because these are weaker bases. What it will form? R plus H2. Now this is a good leaving group. Water becomes a good leaving group. Now I converted this bad leaving group to a good leaving group. This was not a good leaving group. Not a good leaving group. Now this is a good leaving group because water is a weaker base. Weaker bases are stable, so it becomes a good leaving group. Done. One more example on this. One more example. If I take alcohol, again, we know that this is not a good leaving group, and make it treat with a silate chloride. What will happen? Here H and Cl will be removed, converting this to ROTS. Now this OTS we have discussed now is now a good leaving group. Is a गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो ये क्या हो गया? R प्लस और ये OTS माइनस. हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है. क्लियर? और एक एग्जांपल देख लीजिए, RNH2. देखो बेटा, ये NH2 जो है ना, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. हम लोग बाद में इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं.
नाइट्रोजन जो है ना वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, इसलिए तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पूरा भरा पड़ा है। 78% के आसपास नाइट्रोजन है, इतना भरा पड़ा है कि नाइट्रोजन काफी स्टेबल है। सो नाइट्रोजन इज ए वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ओके, हाउ कैन आई मेक सम दिस कन्वर्ट टू नाइट्रोजन? ये रिएक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर सिर्फ यहां जानने के लिए इतना चाहिए। देख लीजिए, हम उसको HNO2 के साथ मिक्स करेंगे। ये HNO2 जो है ना वो बनाने के लिए हमारे लिए डिफिकल्ट है। ये HNO2 बनता है इन सीटू में। इन सीटू में समझ में आ रहा है? रिएक्शन में बनेगा और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे ना, इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर यहां पर क्या हो जाता है, ये RN2 प्लस बन जाता है, जबकि ये RN2 यहां से नाइट्रोजन निकाल जाता है। नाइट्रोजन इज ए वेरी वेरी हमारे हिसाब से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, द बेस्ट लिविंग ग्रुप। द बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है वो है नाइट्रोजन। क्या बनता है? R प्लस बनता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ए लिविंग ग्रुप कॉन्सेप्ट, राइट? नाइट्रोजन का फंडामेंटल क्या है, उसके बाद हम लोग SN1 में जाएंगे। देख लीजिए, रिएक्शन जो होता है ना वो कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। बेसिकली मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है, मैकेनिज्म SN2 भी हो सकता है, मैकेनिज्म E1 भी हो सकता है, मैकेनिज्म E2 भी हो सकता है, मैकेनिज्म E1CB भी हो सकता है, मैकेनिज्म SNTH भी हो सकता है, मैकेनिज्म SNI भी हो सकता है, मैकेनिज्म SN एरोमेटिक भी हो सकता है, मैकेनिज्म SN बेंजाइन भी हो सकता है। तो इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम लोग अगर जानेंगे तब जाके एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकेंगे। क्लियर? पर ये सब जानने के बाद हम लोग एक पूरा पूरा सिस्टम, पूरा जितना मैकेनिज्म है उसको लेके हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। क्लियर? अभी हम लोग काम करते हैं, एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहले SN1 मैकेनिज्म का एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो पहला हमारा डिस्कशन आज होगा SN1 रिएक्शन। पहला डिस्कशन होगा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और उसको हम लोग DN1 भी कहते हैं। SN1 का फुल फॉर्म क्या है? इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फास्ट ऑर्डर। क्या है ये? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फास्ट ऑर्डर। क्लियर है? क्या ये क्या चीज है ये SN1 रिएक्शन? देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल को लेंगे जिसको एनालिसिस करेंगे, वो है अल्काइल हैलाइड। चलिए एक अल्काइल हैलाइड ले ही लेते हैं। कार्बन बॉन्डेड टू R, दिस इज बॉन्डेड टू ए लिविंग ग्रुप। हम लोग अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप को किसको कंसीडर करते हैं? लिविंग ग्रुप हैलोजेंस को। हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये वीकर बेसिस है। हैलोजन यहां पर लगा हुआ है क्या? H, इसको भी हम लोग D ले लेते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इन SN रिएक्शन? In SN1 reaction, in the first step, what happened? This halogen leaves. Okay, this leaves as X minus. ये जो स्टेप है ये RDS स्टेप है। RDS समझ में आ रहा है? स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये जो प्रोसेस होगा SN1 का ये दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप में क्या बनेगा? ये X माइनस छोड़ने के बाद ये जो कार्बन पे ये H, ये D और यहां पर R, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन बना। ये क्या है? इंटरमीडिएट बना। यहां पर क्या बना? इंटरमीडिएट बना। ये जो था sp3 था, ये क्या हो गया?
sp2। ये क्या था? टेट्राहेड्रल। ये क्या हो गया? प्लानर। ये दिखने में कैसा हो गया? पहले तो ये था ऐसे sp3, ये पहले ऐसा था, हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, टेट्राहेड्रल था, ये पहले टेट्राहेड्रल ऐसा था, ये ऐसा टेट्राहेड्रल था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ऐसा टेट्राहेड्रल था, यहां पर क्या हो गया? ये टेट्राहेड्रल था, sp3 था, मान लीजिए ये हालोजन, ये रेड वाला हालोजन है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? ये हालोजन ग्रुप छोड़ के यहां से चला गया, तो ये फिर यहां पर क्या हो गया? ये sp2 हो गया, और ये जो चीज है ये प्लानर हो गया, ये बिल्कुल प्लानर हो गया, प्लानर, ये यू प्लानर हो गया, ये क्या हो गया? ऐसे प्लानर हो गया, sp2 हो गया। और इसको ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया? वैकेंट p ऑर्बिटल आ गया, जहां पर ये प्लस चार्ज रिसाइड कर रहा है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन प्लस चार्ज हो गया, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स अभी आउटसाइड हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले, अगर चाहे तो ये कार्बोकैटायन क्या हो सकता है? रीअरेंज कर सकता है। ये कार्बोकैटायन चाहे तो क्या कर सकता है? रीअरेंज कर सकता है। हम लोग यहां लिख ही लेते हैं, ये कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज, इट कैन रीअरेंज। फिर देख लीजिए यहां पर क्या हुआ? ये प्लानर हो गया, ये जो यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल बन गया, क्लियर, ये इंटरमीडिएट बन गया। जान लीजिए हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ होगा? ये कार्बन यहां से ये एक्स छूट रहा है, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर आर, और यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या हो गया? ये एच, ये डी, ये ट्रांजिशन स्टेट 1। आई बात समझ में? ये ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा? नेक्स्ट स्टेप एक फास्ट स्टेप है, इस फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया होगा अटैक करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट स्टेप में कौन आया होगा अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल। कैसे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? मान लीजिए, देखिए ये पहले कैसा था? ये चीज कुछ ऐसा था, ये टेट्राहेड्रल था ऐसे, ये ऐसा टेट्राहेड्रल था, ठीक है, दिख रहा है। यहां पर क्या हुआ? ये लिविंग ग्रुप छूटा, ये बन गया प्लानर, ठीक है। अब अटैकिंग स्पीसीज आया न्यूक्लियोफाइल, ये अटैकिंग स्पीसीज, ये प्लानर जब बन गया तो ये अटैकिंग स्पीसीज आइदर फ्रंट से अटैक करेगा नहीं तो बैक से अटैक करेगा, आइदर फ्रंट से अटैक करेगा नहीं तो बैक से अटैक करेगा, ये दोनों संभव है। इसका मतलब ये हो गया हमको यहां पर दो तरह के चेंजेस मिले। कैसे मिले? ये यू बना, यू बना, सॉरी, ये यू बना, एच डी आर, इधर यहां पर क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और यहां पर क्या हो गया? ये अटैक पीछे से भी हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ हमको क्या मिला? एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिला, एक इन्वर्सन वाला प्रोडक्ट मिला। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि यहां से यहां तक जाने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट देके जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा? C इज गोइंग टू बॉन्डेड विथ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये R, यहां पर क्या है? H, यहां पर क्या है? D, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। अब देख रहे हैं एक इंटरमीडिएट के लिए दो ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट के बाद इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये प्रोडक्ट बना। ये इसमें क्या प्रोडक्ट बना? एक रिटेंशन प्रोडक्ट हुआ और एक इन्वर्सन प्रोडक्ट हुआ। एक चीज आपको हम यहां बता रहे हैं, क्या हुआ? जब ये लिविंग ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, जब ये लिविंग ग्रुप यहां से छूट के गया, यहां से लिविंग ग्रुप छूट के
गया। ये जाके कहीं और भाग गया क्या? नहीं ना, ये इसी विसिनिटी में है। क्लियर? अगर ये इसी विसिनिटी में है तो थोड़ा सा इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को टाइम मिलेगा पीछे से जल्दी अटैक करने के लिए, क्योंकि ये यहां पर रह के इसको हिंडर करेगा सामने से अटैक करने के लिए। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन्वर्सन प्रोडक्ट विल बी मोर देन दी रिटेंशन प्रोडक्ट। नहीं तो लिटरेचर में ये लोग लिख भी लेते हैं कि यहां हम लोग को रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, प्लस और माइनस मिक्सचर मिलेगा, पर असल में प्रैक्टिकली inversion product is more than the retention product. Actually what happens, the inversion product is more than the retention product. So this is a just introduction to SN1 reaction. क्या देखे हम लोग? दो स्टेप में रिएक्शन हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ? स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बना जो रीअरेंज कर सकता है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ ना, न्यूक्लियोफाइल एक फास्ट स्टेप के दौरान अटैक किया कार्बोकैटायन को, फ्रंट से और बैक से अटैक कर सकता है, तो हमको रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये कायरल कार्बन होगा तो हमको पता चलेगा कि रिटेंशन हो रहा है कि इन्वर्सन हो रहा है। ये रिटेंशन और इन्वर्सन वाला प्रोडक्ट मिला। देख लीजिए यहां दो ट्रांजिशन स्टेट हुआ। हम लोग एनालिसिस हमेशा इंटरमीडिएट के ही कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट्स आर जस्ट गेसिंग। इंटरमीडिएट कैन बी ट्रैक्ड in the reactions. We can track intermediates, but we can't track the transition states. Okay, one more thing want to tell you, it is a two-step reaction. Clear? First step is a slow step, second step is a fast step. So let us write the key points and go for a graph analysis of this reaction. If I go for a potential energy graph analysis, let me tell you the graph here only. अगर मैं इसका ग्राफ एनालिसिस करूंगा तो क्या हो गया इस ग्राफ एनालिसिस में? If I go for a graph analysis, potential energy versus reaction progress, ठीक है, इसका ग्राफ एनालिसिस अगर करूंगा तो क्या हो गया? देखिए रिएक्टेंट था, देख लीजिए एक ग्राफ को पहले एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर क्या था? अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, डन। फिर यहां से क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट 1 में आया, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, सबसे लीस्ट स्टेबल, क्यों? मैक्सिमम एनर्जी। फिर कहा क्या हो गया? फिर हो गया इंटरमीडिएट। यहां पर क्या बना? इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन बना, इंटरमीडिएट बना। क्लियर? फिर क्या हुआ? यहां पर ट्रांजिशन स्टेट 2 को देके गया, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। ये ग्राफ का नीचे होना, इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिए, ये ग्राफ का नीचे होना यही बता रहा है कि पहला स्टेप जो है ज्यादा एनर्जी उसको लग रहा है तो ये स्लो स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में एनर्जी कम है, उसको कम टाइम लगेगा, ये फास्ट स्टेप होगा। फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये क्या हो गया? आर वाज सब्स्टिट्यूटेड विद आर विद बॉन्डेड विद न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स माइनस इज रिलीज्ड, मतलब the nucleophile substituted in place of the living group halogen. So this was the graphical representation, मतलब potential energy diagram for this reaction. तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? Now let us go for the discussion of the key points of this reaction. Key point क्या है? देख लेते हैं key point क्या है इस रिएक्शन में। पहला key point, key point क्या हो सकता है इस रिएक्शन में? देख लेते हैं key points of this reaction. पहला की पॉइंट क्या हुआ? पहला की पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप was the slow step and the rate determining step, isn't it? So what can I say? The first step is स्लो स्टेप एंड आरडीएस क्या हो गया? रेट डिटरमाइन हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, isn't it? What happened? In the first step कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड and it is, or I can say, and it can rearrange
if needed. क्या समझा है इसमें? It can rearrange if needed. Clear? थर्ड पॉइंट क्या है? The nucleophile attacks in the second step, मतलब the first step. जानते हो न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में ऐड हो रहा है, मतलब कौन सा स्टेप में ऐड हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में. तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना घटना विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? द रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन अल्काइल हाइलाइड concentration. It will not depend upon the concentration of the nucleophile as nucleophile is introduced in the second step. एक एनालॉजी इसके बारे में पढ़ ही लेंगे हम लोग. देख लीजिए और एक कॉन्सेप्ट थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में. फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में rate is proportional to alkyl halide concentration. Clear? It does not depends upon the concentration of the nucleophile to the power 0. इसको कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन. इसको क्या कहते हैं? रेट लॉ इक्वेशन. इसको और एक बार यहां लिख लेते हैं. इसको और एक बार लिख लेते हैं. ऐसे लिख के काइनेटिक्स लिख के द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स only on the alkyl halide concentration. It does not depends upon the concentration of nucleophile. Sometimes they may ask you a question, if the concentration of the nucleophile is doubled, what will be the rate of the first order reaction? Nothing. The rate will remain constant because the concentration of nucleophile it changes or does not change. It does not affect the rate of the SN1 reaction. Clear? Now, if this is doubled, what will happen if this is doubled? Rate will also double. Okay. The change in concentration of the alkyl halide will affect the rate, but not the change in concentration of the nucleophile. I can write this reaction in this one also. Rate is equals to some constant K, alkyl halide concentration to the power 1. What is this K? K is called a rate constant. It's called rate constant. And this equation is called a rate law expression, and it's determined experimentally. ऐसा नहीं कि हमने बोला और ये हो गया. ये बकायदा एक्सपेरिमेंट करने से ही ये इक्वेशन आता है. क्लियर? सो यहां पर एक चीज देखें हम लोग. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? ऑर्डर इज 1. ऑर्डर 1 मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है उसके पावर का सम को हम लोग ऑर्डर कहते हैं. यहां पर पावर कितना है? 1. सम तो नहीं, जरूरत नहीं, एक ही है, तो ऑर्डर क्या है? 1. और मॉलिक्युलरिटी कितना है? मॉलिक्युलरिटी भी 1 है. क्यों? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द स्लो स्टेप इज 1. तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? 1 है. ऑर्डर क्या है? 1. मॉलिक्युलरिटी 1. तो ये इस SN1 रिएक्शन का ये है काइनेटिक्स. Order 1, molecularity 1, rate depends only on the concentration of the alkyl halide. Clear beta? Next, we'll go for the stereochemistry of this reaction. Stereochemistry क्या होगा? Stereochemistry. Now, stereochemistry. देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है. वी नो दैट हियर आफ्टर द लिविंग ग्रुप लिव्स द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट एंड आल्सो फ्रॉम द बैक, सो दैट वी विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, inverted product and also retention product. That means two varieties of products are, one is inverted, the other one is racemized. That means we are going to get what? Racemic products. Racemization of products occur. We can say that a racemization of or racemization
or racemic products are occurred, or racemic products are obtained. But to the original fact, what is the concept? We can say that inverted products dominates practically. Next fact. Next fact. और एक एग्जांपल कर लेते हैं, SN1 का एक एग्जांपल. If the question is something like this, CH3C, CH3H, CH2Br, done. And if I treat this with dilute NaOH, समझ में आ रहा है? dilute NaOH मतलब we have NaOH in water. Okay, what will happen in this case? Step 1. In step 1, bromine is removed. What will be formed here? CH3, C, CH3, CH2 plus H. क्या बना इस स्टेप में? कार्बोकैटायन. That means it is the RDS step. Here, फिर क्या हो गया अगले स्टेप में? अगले स्टेप में can I rearrange this to a more stable one? Yes, I can rearrange. How? If I move this hydrogen from here to here, so ये 1 to hydride शिफ्ट हुआ होगा. आपको एक एक स्टेप के बारे में बताता हूं. यहां पर क्या हुआ होगा? ट्रांजिशन स्टेट 1 हुआ होगा. कैसे हुआ होगा? CH3 C, CH3 H, ये बॉन्ड टूट रहा है, Br माइनस C प्लस, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया. क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये CH3 C, CH3 CH2, शायद आपको याद होगा हम लोग कार्बोकैटायन में डिस्कशन किए थे. ये H, ये पॉजिटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया 2. क्लियर? फिर यहां हाइड्रोजन शिफ्ट होने से क्या हो गया? CH3 C, CH3 CH3 प्लस. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डाइल्यूट NaOH था, ब्रोमीन निकल गया, तो यहां पर वाटर जो डाइल्यूशन में था, this act as a nucleophile and attacks this carbon. So what will happen in this step? CH3 C, CH3 CH3 O H H प्लस. अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? यहां से हाइड्रोजन फायर हो जाएगा. तो फिर बना क्या? CH3 C, CH3 CH3 OH. देख रहे हैं ये RDS है, ये से बाकी स्टेप्स सब क्या है? फास्ट स्टेप्स है. क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन. डन. कॉपी इट डाउन. नेक्स्ट. क्लियर? यहां पर आप लोग क्या देखें कि हम लोग ये जो रिएक्शन बना है, अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? रिएक्शन प्रोग्रेस, पहले ट्रांजिशन स्टेट, फिर इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट. देख रहे हैं आप लोग यहां पर 2 इंटरमीडिएट बना. ये है इंटरमीडिएट नंबर 1, ये है इंटरमीडिएट नंबर 2. फिर यहां से क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट बन के ये बना होगा, राइट? तो ये क्या हो गया? RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो गया? R न्यूक्लियोफाइल प्लस X. ये ट्रांजिशन स्टेट 1, इंटरमीडिएट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, इंटरमीडिएट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट 3. डन. तो हमेशा 3 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में कितने इंटरमीडिएट रहते हैं? 2. ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. यहां पर क्या देखें कि मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, more faster the SN1 reaction because carbocation is formed in the rate determining step. ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट को. क्या है पॉइंट?
more stable the carbocation, more faster the rate of SN1 reaction. Why? Because carbocation is formed in the slow step or in the determining step. Because carbocation is formed in the slow step or RDS, rate determining step. Clear? Now I'll give you some question. You have to tell me whether this reaction, or you have to compare and tell that who will be having a faster SN1 reaction, right? Or you can say that my question is, arrange as per the rate of SN1. फंडामेंटल क्या है बेटा? More stable the carbocation, more faster the rate of SN1 reaction. Then, for example, question number 1, CH3C, CH3, CH3X, फिर CH3C, CH3H, X, CH3C, HHX, CH3X. Now tell me which one of this will show a faster rate. ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को. यहां पर x निकलेगा. कैसे निकलेगा? x माइनस बन के. तो यहां पर क्या बन जाएगा? प्लस. तो यहां पर अगर प्लस बना तो ये क्या हो गया? 1 2 3 टर्शियरी कार्बोकैटायन विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन. इजंट इट? यहां से x निकला माइनस बन के. यहां पर क्या बनेगा? प्लस. यहां पर कितने, ये क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बोकैटायन विथ 336 अल्फा हाइड्रोजन. यहां से x निकला माइनस बन के. यहां पर क्या हो गया? प्राइमरी कार्बोकैटायन विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन. यहां से x निकला, x माइनस बन के, यहां बन गया प्लस. ये क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकैटायन. तो ये क्या हो गया? टर्शियरी कार्बोकैटायन विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन. ये क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बोकैटायन विथ 6 अल्फा हाइड्रोजन. ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बोकैटायन विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन. ये क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकैटायन. ये क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज द intermediate. Now this is the intermediate formed. Now this is the case. Now you tell me honestly, ये x minus बन के निकला, ये x plus. Now tell me honestly, which one will be the most stable carbocation? Obviously this one. More is the stability of the carbocation, more faster it will show SN1 reaction. So SN1 reaction faster किसमें होगा? Tertiary, फिर secondary, फिर primary, फिर मिथाइल. पर असल वाला ये एक चीज यहां पर याद रखिए, मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो SN1 रिएक्शन दिखाता नहीं है. SN1 रिएक्शन इज नॉट शोन बाय मिथाइल कार्बोकैटायन. सो SN1 रिएक्शन इज नॉट शोन बाय मिथाइल कार्बोकैटायन. और इसलिए SN1 रिएक्शन का ट्रेंड क्या है? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और मिथाइल वाला कार्बोकैटायन दिखाता ही नहीं है. क्लियर? SN1 रिएक्शन होता नहीं है. डन. नेक्स्ट example. Next example of SN1 reaction. Second case. If I'll give you something like this. X. 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 Now out of this, if this is structure 1, structure 2, structure 3, structure 4, which one will show more SN1 reaction? Fundamental वही, यहां से X निकल जाएगा, X माइनस बन के यहां पर प्लस बना. तो ये जो प्लस बना ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो गया? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा.
यहां से x निकल गया, ठीक है, x माइनस बन के यहां पर क्या बन गया, प्लस। ये जो प्लस है वो कनेक्टेड टू 1 2 3, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया। यहां से जो x निकल गया x माइनस बन के, तो यहां पर क्या बन गया, प्लस। दिस कार्बन कैटायन इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो अभी इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, ऑब्वियसली 2, फिर 3 का, फिर 1। क्यों, और एक बार, ये प्लस इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन, सो प्राइमरी। हियर द प्लस इज कनेक्टेड टू 1 2 3 कार्बन, सो टर्शियरी। हियर प्लस इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन, सो सेकेंडरी। Tertiary will be more reactive for SN1. Tertiary will be having more rate of SN1 then secondary then primary. वैसे भी इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 4 5। One more thing here, when the carbocation is formed, how many alpha hydrogen is there, 1 alpha hydrogen is there, isn't it? When this carbocation is formed, how many alpha hydrogen is there, here 3 4 5 6 7, 7 alpha hydrogen. Now when this carbocation is formed, how many alpha hydrogen, 1 2 3, 3 alpha hydrogen. Now tell me which one will be more stable carbocation, this one. So more is the stability of the carbocation, more faster it will show SN1 reaction. So SN reaction will be more in second, then third, then first. So what about the fourth one? Fourth one, when x is removed as x minus, here plus is formed. Do you find one thing, this is a bridgehead point, and according to Bredet's rule, a bridgehead carbon cannot have a plus charge, because if it will become a plus charge, this will have a planar structure, sp2 hybridization, and all the rings in a plane will give high angle strain and it will destabilize the system. So here this will not show SN1 as plus charge over this bridgehead is not allowed, so SN1 is not shown here. So this is ruled out. Rather if you say जबरदस्ती करेंगे कहां होगा, तो अंत में आएगा, परंतु इसमें SN1 होगा ही नहीं। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, 2 3 1। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन चलिए, इसमें कौन ज्यादा SN1 मतलब इस केस में किसमें SN1 फास्टर होगा, देख लीजिए। यहां से x रिमूव होगा as x माइनस, दिस इज व्हाट, प्लस। यहां से x रिमूव होगा as x माइनस, दिस इज व्हाट, प्लस। ध्यान दीजिए एक चीज, यहां पर क्या है, लोन पेयर है। क्लियर, यहां लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस m इफेक्ट दिखवाएगा, this will have plus m effect. Clear, and we know that carbocation can do anything for plus m. कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए प्लस m कुछ भी कर सकता है, जबकि यहां पर जब प्लस आएगा, यहां तो प्लस m नहीं आएगा, उल्टा ये OCH3 वाला फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। ये प्लस m इफेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 विल हैव मोर SN1 रेट देन स्ट्रक्चर 2। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में एक क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा बना, x स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, देख लीजिए। यहां से जब ये x निकलेगा x माइनस बन के, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्लस आ गया। क्या ये प्लस इसके साथ कंजुगेशन में है, जी बिल्कुल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जबकि यहां से x माइनस निकलेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, सिंपली प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। यहां पर कार्बोकैटायन बना जो कंजुगेशन स्टेबलाइज्ड है। मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, मोर विल बी द रेट ऑफ SN1. So in this case rate of SN1 will be greater in case of 1 than in 2. Let's go for some more examples. Some more example. Fifth question.
स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। अब बता दो इन दोनों केस में कौन ज्यादा रेट दिखाएगा। सिंपल, यहां से x निकलेगा x माइनस बन के, तो यहां बना प्लस, यहां से x निकलेगा x माइनस बन के, तो यहां बना प्लस। अगर यहां प्लस बना तो ये कितने अल्फा हाइड्रोजन रखता है, 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि यहां से प्लस बनाने से क्या बन रहा है, देख रहे हैं एक चीज यहां बन रहा है CPM, हम अब पहले डिस्कशन कर चुके हैं। क्या है ये CPM? CPM मतलब साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, जो काफी स्टेबल है, हाई स्टेबिलिटी है उसके पास ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। इसके पास काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो SN1 के रेट किसमें ज्यादा होगा, 1 में, बाद में 2। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में क्या है, यहां पर x, फिर यहां पर x। अब बता दीजिए इस केस में किसका रेट ज्यादा होगा। देख लीजिए, यहां से अगर मैं x निकाल रहा हूं x माइनस बना के, तो यहां प्लस बन रहा है। यहां से अगर मैं x निकाल रहा हूं x माइनस बना के, तो यहां पर प्लस मिल रहा है। जबकि यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, 1 2। तो बकायदा हाइपर कॉन्जुगेशन हिसाब से इसका रेट ज्यादा होना चाहिए, पर यहां पर क्या मिल रहा है कार्बोकैटायन को, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये अगर स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 1 ये स्ट्रक्चर 2, तो बताइए कौन सा मोर ज्यादा SN1 दिखाएगा। SN1 का रेट ज्यादा कहां पर होगा, 2 में, देन 1 में। वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us go for one more example. X, 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 फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इसमें बता दीजिए किस में ज्यादा होगा रेट। यहां से अगर मैं x निकालू तो ये x माइनस बन के निकलेगा, यहां प्लस, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 1 6, ठीक है, ये टर्शियरी बना, क्लियर। जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी या टर्शियरी बनेगा, प्लस 1 2 3, यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 2, सेकेंडरी। पर एक प्रॉब्लम याद है आपको, ये अगर माइनस हुआ ये प्लस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ब्रीजेड, तो ये SN1 के लिए रूल आउट हो जाएगा। जबकि ये बना क्या, सेकेंडरी, ये बना क्या, टर्शियरी, ये प्लस 1 2 3, ये प्लस 1 2, सेकेंडरी। तो जाहिर सी बात है कि 1 विल बी हैविंग मोर रेट देन 3, and in case of if you ask for me 2, then I will rather say in 2 SN1 is not permittable because it goes against the rule of Bredet. Done. Next example, one more example. Now the question comes, if it is something like this, Cl 35 and Cl 37. Now tell me which one will be having more SN1. See, 35 is a lighter isotope of chlorine while 37 is a heavier isotope. We know that when the isotope is heavier, removing the Cl37 will be difficult. Why difficult? As it is heavy, what will happen? As it is heavy, the vibration along this axis will be less. So shorter bond length, more stability, more strength. While Cl is lighter, larger bond length, less stability, easy to remove. So removal of Cl35 is easy than Cl37. So if it is figure 1, it is figure 2. So SN1 of 1
will be greater than 2. Next example. One more example. Let us go for one more example. What happens in this case? If I remove this x as x minus and this as plus, so tertiary, x as x minus, this as plus, secondary, so 1, 2. So first will be having faster rate than second one. Let me rub this. Now one more example. If you have pH3 CX, pH2 CHX, pH CH2 X. Now tell me, who will be having faster rate? X is removed as X minus. Now triphenyl, here in this carbon, triphenyl is added. So matlab more resonance. Here biphenyl, diphenyls are there. X minus will be removed. Here carbon will be bearing plus charge. X minus will be removed. Carbon will be bearing plus charge. So obviously 1, 2, 3. We will be having more faster rate. 1, then 2, then 3. Next, one more question for you. Now in 1 and 2, tell me, we'll be having a faster SN1 reaction. Now the problem is that this is in resonance to this. So what will happen? Due to resonance, there will be conjugation. Due to resonance, what will happen? This electron pair will come over here and this will come over here. What will happen? This single bond will have PDCH. Do you know what is PDCH? It's called partial double bond character. Due to which this single bond will have a double bond character, and cracking this bond will be very, very difficult for us. So this will not show SN1. When we'll study SN2 also, this will also not show SN2, because the breaking out of the leaving group becomes difficult. Whereas if I break out this as X minus, if I break out this as X minus, this will have a plus charge, which is in conjugation and more stabilized. So obviously 2 will be having faster SN1 reaction than 1. Done. Easy. Clear. Next. Next. A note point. Do you know AgNO3 can act as a catalyst in SN1 reaction? Note point. What is that? AgNO3 can act as catalyst in SN1 reaction. How? Look here. Here we have X. If I treat this with AgNO3 aqueous, what will happen? Let me make this like this. AgNO3 will give Ag plus, which is having a very strong affinity for halides, especially chlorides and bromides. They instantly precipitate. So what will happen in this case? Here AgX is removed, especially as precipitate. Especially as precipitate. Clear? What will be formed here? A plus will be formed here. Can I rearrange this to a more stable form? Yes. By 1, 2 hydride shift. So what will happen in this case? A plus, because this was having 1, 2, 3, 4 alpha hydrogen. This is having now 3, 4, 5 alpha hydrogens. Now to this we have aqueous AgNO3, right? So water will come and this will attack this carbon, forming what? Protonated alcohols. Now from this H plus is fired. What do I get here? OH. So this is the answer. Okay, copy it. Next. One reactions are known as solvolysis reactions. Kiss
टाइम हम लोग SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कह सकते हैं। जब सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल बनेगा तब हम लोग SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर वो सॉल्वेंट हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं SN1 में, कौन सा सॉल्वेंट है, हम लोग ज्यादातर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ही लेते हैं। आपको तो याद होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, जिसके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो पहला एग्जांपल, मान लीजिए हमने वाटर इस्तेमाल किया और वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। अगर मान लीजिए हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया तो अल्कोहोलिसिस। मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया तो ये क्या हो जाएगा, एसिटोलिसिस। क्या ये आपको ये चीज याद है? देखिए, अगर चीजें ऐसे दिया गया है CH3CX और CH3CH2X, अगर आपको पूछा जाएगा इनमें से SN1 का रेट किसमें ज्यादा होगा, तो आप लोग कूद जाएंगे इसका आंसर बताने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां से X निकलते ही यहां प्लस बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहां से X निकलते ही यहां प्लस बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। Tertiary carbocation is more stable than the primary carbocation, and we know that more stable the carbocation, more is the rate of SN1 reaction. तो यहां पर बकायदा क्या हो जाएगा, इस केस में जब टर्शियरी रहेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट पानी है तो पानी यहां अंदर घुसने के लिए उसको डिफिकल्टी होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है और ये नॉर्मली वाटर को अलाउ नहीं करते इसके अंदर घुसने के लिए। तो क्या होता है उस केस में, जब हम लोग पानी लेते हैं एज एन न्यूक्लियोफाइल, उस केस में हम लोग एसीटोन भी ऐड करते हैं और कभी कभार हम इस चीज को एक्वस एसीटोन भी लिखते हैं। आप लोग टेंशन में हो जाएंगे, सर एसीटोन इज पोलर एप्रोटिक सपोर्ट्स SN2, still you are using this? Yes, because this type of things, tertiary things especially, dissolve in acetone, then it dissolves in water, it becomes easy for us. जब भी आपको aqueous acetone मिले तो आप सोच लीजिएगा कि वहां पर SN1 होने की चांसेस है। सिर्फ एसीटोन दिया जाएगा तो यहां पर SN2 होने की चांसेस है। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। पहला एग्जांपल, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया गया है, एग्जाम्पल 1, CH3 C CH3 CH3 Br। पहले इसमें हम लोग अगर ये SN1 हुआ तो SN1 में क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनते हैं। कैसे बनते हैं, ब्रोमीन यहां से निकला, तो जब ब्रोमीन यहां से फायर आउट हो गया तो ये SN1 के थ्रू गया तो ये RDS होगा। RDS मतलब ये स्लो स्टेप है और यहां पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर बकायदा एक टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा और वो टर्शियरी कार्बोकैटायन काफी स्टेबल है। हाँ या ना, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन काफी स्टेबल है। इसके बाद मान लीजिए हमने इसमें पानी मिलाया तो क्या हो जाएगा, पानी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां अटैक करेगा। ये पानी यहां सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा काम करता है। हम इसको हाइड्रोलिसिस भी बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये कुछ ऐसा बना सीन, CH3 C CH3 CH3 O H H प्लस। क्या ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना? उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां से H प्लस फायर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना यहां पर, C CH3 CH3 OH, क्या बना, ये अल्कोहल बन गया। इजी। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। हियर द सॉल्वेंट वाटर एक्ट्स इटसेल्फ एज न्यूक्लियोफाइल and therefore its process is called as solvolysis। SN1 रिएक्शन हम लोग solvolysis इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका SN1 रिएक्शन होता है और SN1 रिएक्शन में अगर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है हम उसको solvolysis कहते हैं। जब वाटर ले ही रह रहे हैं तो हमको पता है कि यहाँ पर थोड़ा एसीटोन लेना आसान है और नहीं तो हम लोग यहाँ पर aqueous एसीटोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं तो यहाँ पर aqueous एसीटोन भी
लिख सकते हैं। अगर सेम रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ किया तो कैसा होगा, देख लीजिए। अगर हमने अल्कोहल के साथ किया सेम रिएक्शन विथ अल्कोहल, मान लीजिए अल्कोहल ROH, यहां पर क्या बन जाएगा इंटरमीडिएट CH3 CH3, ये हो गया कार्बोकैटायन। अटैक किया किसने, अल्कोहल, मिथानॉल, इथानॉल कोई भी हो सकता है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट्स SN1। यहां अटैक किया तो क्या बना यहां पर CH3 OH R, और O के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा H प्लस फायर्ड, तो क्या बना CH3 O R, तो ये क्या बन गया, डिड यू गेट एन ईथर हियर, अल्कोहल के साथ क्या बना, ईथर बना, अल्कोहल का H फायर हो गया, तो ये फास्ट है, ये स्लो स्टेप है जब कार्बोनेट बना, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये फास्ट स्टेप। तो इस प्रोसेस को हम लोग अल्कोलिसिस भी कह सकते हैं, अल्कोलिसिस, जैसे सॉल्वोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, या अल्कोहोलिसिस हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, और एक एग्जांपल, उसी रिएजेंट के साथ अगर हमने एसिटिक एसिड ले लिया, तो अगर रिएजेंट हमने एसिटिक एसिड ले लिया तो CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या हो जाएगा, यहां का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अटैक करने से क्या मिलेगा हमको, CH3C, हम थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारा प्लेस एडजस्ट हो जाएगा, CH3 OH प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से H प्लस फायर हो गया। जब H प्लस फायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बना, COOR एस्टर बना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। और एक दो एग्जांपल करें। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, एग्जांपल नंबर 2, CH3 यहां H CH2 Br और हमको मिथानॉल दिया गया है। मिथानॉल अल्कोहल है, ठीक है, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अल्कोहोलिसिस सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले तो ब्रोमीन निकल जाएगा, जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो हमको क्या मिलेगा एज इंटरमीडिएट, ये RDS स्टेप होगा और बाकायदा स्लो स्टेप है। तो पहला स्टेप में क्या बनेगा, CH3 CH3 H CH2 प्लस। क्या हम उसको और रीअरेंज कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये हाइड्राइड शिफ्ट करवा के, तो ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। जब ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो कैसा बना, CH3 प्लस CH3 बना। ये जो शिफ्टिंग विफ्टिंग है ना, ये थोड़ा फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। जब कार्बोकेटायन बनता है तो वो स्लो है, ये शिफ्टिंग थोड़ा फास्ट स्टेप है। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बना, काफी स्टेबल है। और इसके बाद इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, MeOH, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक किया। क्लियर, तो फिर यहां से अटैक करने के बाद H प्लस फायर हो गया। H प्लस फायर होने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर CH3 O Me, इथर बना CH3 के साथ। डन, हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन कर लें, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल देख लीजिए, वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 3, अगर सवाल ऐसा दिया गया है, CH3 CH2 Br, ऐसा दिया गया है Br, और इसको अगर हमको इथानॉल के साथ रिएक्ट करवाना है,
किसके साथ रिएक्ट करना है? इथेनॉल के साथ। यहां से क्या हो गया बेटा? बी आर माइनस फायर्ड आउट। जो फायर्ड आउट तो क्या बना? CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस, और ये स्टेप जो है RDS है, स्लो है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट होगा। ये मिथाइल यहां शिफ्ट होगा तो प्लस यहां आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। जब 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया तो क्या बना? CH3C CH3 CH2 CH3, ये बन गया इंटरमीडिएट स्टेज में। फिर यहां पर कौन अटैक करेगा? यहां पर इथानॉल अटैक करेगा। जब इथानॉल अटैक करेगा तो इसके लोन पेयर यहां अटैक करेगा और यहां से H+ फायर हो जाएगा। तो क्या बन गया? सीन क्या बना? आंसर क्या बना? CH3C CH3O ET CH2 CH3 हो गया। चलिए वन मोर एग्जांपल टू डिस्कस, वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 4। नाउ लेट अस गो फॉर एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में क्या है? आयोडीन। लेट अस ट्रीट दिस विथ same methanol. It will act as a solvolysis reaction. Methanol will be acting as a nucleophile. तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा? आयोडीन निकल के आ जाएगा। जब आयोडीन निकल के आ जाएगा तो पहला स्टेप I- निकल गया। क्लियर? ये RDS स्टेप है। तो क्या बना? कि यहां पर प्लस बना। कैन आई रीअरेंज दिस? यस, वी कैन रीअरेंज। यहां पर H है, यहां पर पता है हमको 2H है, वहां एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? कितना? 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। अभी एक H यहां से शिफ्ट हो गया तो कैसा बना ये सीन? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो फिर क्या हुआ? क्या ये सीन ऐसा बना? यहां पर प्लस आ गया, हाँ या ना? क्योंकि अभी यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अभी यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? ये कार्बन पे है 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, और यहां पर 4 5। सो 5 अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इन दिस केस again methanol attacks, electron pair will attack. Now H+ is fired. So what will happen in this case? यहां पर क्या आ जाएगा? OMe। जो यहां पर हमको नहीं दिख रहा है वो क्या है? H। क्या ये एक कायरल सेंटर हो सकता है? एक ये अलग, ये अलग, ये अलग, अलग अलग ग्रुप। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रेसमिक मिक्सचर भी बन सकता है, हाँ या ना? इसमें रेसमिक मिक्सचर भी बकायदा बन सकता है। इजी? क्लियर? लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल। वन मोर एग्जांपल देख लीजिए। और एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 5। OMe Cl treated with EtOH। पहला स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? Cl इज रिमूव्ड, RDS आज Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा? OMe यहां पर आ गया प्लस चार्ज। फिर क्या होगा यहां पर? अब आप लोग सोचिए, अगर मैं यहां लेता हूं तो मुझे 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। अगर यहां लेता हूं तो क्या मिलेगा हमको? हाइड्राइड शिफ्ट करवा के ये प्लस अगर इधर आ गया तो हमको +m का स्टेबिलिटी मिलेगा, और +m इज गिवन मोर इंपोर्टेंस। सो यहां पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पर किस तरफ? इस तरफ शिफ्ट होगा, इस साइड में। तो क्या मिला हमें? OMe, दिस इज प्लस बिकॉज हियर आई गॉट +m स्टेबिलिटी। डन। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर इथानॉल ऐड होगा।
इथानॉल का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक किया, H प्लस फायर आउट किया, तो फिर क्या हो जाएगा, OMeOET बन गया। जो हमको यहाँ नहीं दिख रहा है वो क्या है, H। क्या ये कैरल सेंटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। क्लियर? कॉपी दिस। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। For example, is given like this: Cl और यहां पर ऐसे दिया गया है और दिया गया है AgNO3 aqueous। याद है आपको ये क्या होगा? Aqueous NO3 acts as a catalyst in case of SN1 reaction because silver has a very strong affinity for the halide groups, and especially silver chlorides and bromides, you know, they have strong affinity, they precipitate out. What happened in this case? AgNO3 से Ag plus NO3 minus, Ag plus Cl minus को ले जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, AgCl निकल गया प्रेसिपिटेट बन के। ये RDS स्टेप है। क्यों? क्योंकि इस स्टेप में क्या बनेगा, इस स्टेप में ये कार्बोकैटायन बना और बकायदा यहां पर ऐसा एक ग्रुप है। क्या हम इसको और स्टेबलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहां पर एक हाइड्राइड है, यहां पर 2 हाइड्राइड है। अगर यहां हाइड्राइड शिफ्ट करवाया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले अभी 1 2 3 टर्शियरी था, यहां आएगा तो सिर्फ सेकेंडरी होगा, तो फायदा नहीं इस हाइड्रोजन का। पर ये हाइड्रोजन अगर शिफ्ट करवा दिया तो इसको क्या मिलेगा, CPM स्टेबिलिटी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल स्टेबिलिटी मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ सीन हुआ, ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, फिर क्या हो गया, यहां पर कुछ यूं करके सीन हुआ, यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। फिर क्या हो जाएगा, एक्वस एजिनोथ्री से क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर वाला ये चीज अटैक हुआ, H प्लस फायर हो गया। H प्लस फायर होने से क्या मिला हमको, ये यहां पर OH डन। यहां पर क्या मिला हमको, CPM एडवांटेज, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बना। डन। वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया है, ब्रोमीन एक्वस। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन रिलीज्ड। डन। पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा। तो ब्रोमीन रिलीज होने से क्या हो जाएगा, व्हेन ब्रोमीन वाज रिलीज्ड, ये कुछ ऐसा बना, ये बना प्लस। क्लियर? कैसे रिलीज होगा ब्रोमीन, ये ब्रोमीन सिल्वर से आए हुए Ag प्लस के साथ मिलके क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, वो फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये स्टेप RDS का होगा, स्लो स्टेप होगा। इसका मतलब ये बना। क्या इसमें हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे, रिंग एक्सपांसन करेंगे। याद है आपको रिंग एक्सपांसन, ये वाला चीज यहां आएगा, यहां पर बनेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फिर कैसा बना, ये जो नया बॉन्ड बना यहां पर प्लस चार्ज। तो अभी ये 1 2 3 4 5 मेंबर था, अभी ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर बना, 6 मेंबर। यहां इसको और स्टेबल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे, यहां से यहां पर जो सीक्रेटली जो हाइड्रोजन था, ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो फिर कैसा बन गया, ये यूं
हाइड्राइड शिफ्ट करके यू बन गया। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर H2O acts as a nucleophile, H2O attacks, H plus fired, तो आंसर क्या बना यहां पर OH। डन, इजी। नाउ लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। Now let us go for question number 8. ये क्वेश्चन ऐसा है, पीएच Br CH3 H मिलाया किसके साथ, H2O, किसमें, एसीटोन में, या हम लोग एक्वस एसीटोन भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, ब्रोमाइन फायर्ड आउट हुआ, तो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बना, H, ये प्लस, ये फिनाइल, ये CH3। अब जब वाटर अटैक करेगा, इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैक। इट मीन्स आई विल गेट प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस, पीएच। यहां वाटर अटैक किया ना, नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक किया, प्लस वाटर, H प्लस फायर्ड आउट, so I can get something like this, H OH CH3 और OH H PH CH3, मतलब I will get what, ये क्या है, क्या ये रेस्मिक प्रोडक्ट है, आर दे मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, विल गेट अ रेस्मिक प्रोडक्ट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। One more question. pH, ये क्वेश्चन ऐसा है, HCl, और इसमें क्या करते हैं, मिथाइल H इथाइल, वही वाला फंडामेंटल यूज करते हैं, वाटर इन एसीटोन। How to solve this question? Water in acetone. Solve this question. Now, एक काम करते हैं, इसको फिनाइल ही रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा कि क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। पहले स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन निकल गया, तो क्या बना यहां पर, H, मिथाइल H, फिनाइल, ये फिनाइल और ये प्लस। क्या हम इसको और स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये प्लस था, इसके पास फिनाइल था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर पहला वाला क्वेश्चन होता, यहां अगर इथाइल होता तो हम लोग सोचते दूसरी तरह, क्योंकि अगर यहां इथाइल होता तो यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं था। हमने यहां पर फिनाइल ले आया इथाइल के बदले, तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, देख लीजिए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, तो क्या बना यहां पर, H PH, मिथाइल, यहां पर प्लस, ये फिनाइल, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया, तब मतलब यहां शिफ्ट करना जरूरी था। फिर यहां पर वाटर आ जाएगा, अटैक करेगा वाटर विथ फायरिंग ऑफ H प्लस, तो क्या बन जाएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PH, ये क्या हो जाएगा, CH2, ये यहां पर क्या हो जाएगा, मिथाइल OH PH, और फिर यहां क्या हो जाएगा, PH CH2। ये अटैक जो हो सकता है फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, तो फिर क्या बनेगा यहां पर, OH मिथाइल PH। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, डिड आई गेट अ रेस्मिक मिक्सचर हियर, से यस और नो, डिड आई गेट अ रेस्मिक मिक्सचर, हाँ, कॉपी इट डाउन। वन मोर क्वेश्चन,
One more question. Question number 10. Methyl, phenyl, chloride, DH, phenyl. डन. वही वाला फंडामेंटल लेंगे, वाटर इन एसीटोन वाला केस लेंगे. क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हम लोग यहां से फिनाइल निकाल देते, सॉरी क्लोरीन निकाल देते हैं, तो क्या बनेगा यहां पर, क्या सीन ऐसा बनेगा, क्लोरीन निकाल दिए, Cl माइनस निकल गया. ठीक है, ये RDS है, Cl माइनस निकल गया, ये RDS स्टेप है. यहां पर क्या बना, फिनाइल, मिथाइल, यहां से क्लोरीन हटा, ये प्लस चार्ज, और ये HD फिनाइल. क्या आपको लगता है कि यहां पर कोई शिफ्ट फिट होगा, ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन ऐसा शिफ्ट होगा? देख लीजिए, अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये प्लस इधर आएगा, तो हमको क्या मिलेगा, फिनाइल का एडवांटेज मिलेगा, पर ड्यूटेरियम रहेगा. पर यहां पर फिनाइल का जो रेजोनेंस एडवांटेज भी मिलता है, और ऊपर से ये मिथाइल की वजह से 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, तो ये स्टेबल है. इसके बाद हम लोग अगर यहां से H2O ऐड करेंगे, H2O ऐड हुआ, H2O एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ऊपर से H+ भी फायरिंग हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर, क्या ये मिथाइल, यहां OH, फिर फिनाइल, HD फिनाइल, ये जो अटैक होगा सामने से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है. तो ये कैसा बन गया, OH मिथाइल फिनाइल, यहां पर DH फिनाइल. क्या ये रेस्मिक मिक्सचर बना? नहीं ना. अगर दोनों कैरल सेंटर्स चेंज होते तो रेस्मिक बनता. अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट चेंजेस आया, ये चेंज नहीं हुआ, तो ये रेस्मिक नहीं. यहां पर क्या बनेगा, डायस्टेरियोमस. ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये डायस्टेरियोमस बना. क्लियर? ये रेस्मिक मिक्सचर नहीं बना, डायस्टेरियोमस बना, क्योंकि एक ही पॉइंट में चेंजेस हुआ, दोनों पॉइंट में नहीं हुआ. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. एग्जांपल वी हैव क्वेश्चन CS3 C, CS3 H, CS2 Br. In this case, if I use here methanol, what will happen? Simple, bromine will be leaving this place. What will be formed here? CS3 C, CS3 CS2. Here CS2 will be bearing the plus charge. And to this, if methanol is added, H+ fired out, what will form? CS3 C, CS3 CS2 OMe. ध्यान दीजिए, this is the minor product formed. This is the minor product formed. And in this case, if I go it for more rearrangement and I make it 1,2 hydride shift, CS3 C, CS3 plus CS3, and to this if I add methanol, electron pair will be attacking this, hydride H+ fired out, what will form? CS3 C, CS3 CS3 O Me. Now the question comes, this is the major product formed. This is the major product formed. Now the question comes, why this is minor and why this is major? बेटा यहां एक थंब रूल याद रखेंगे हम लोग. When there is a series of intermediates, मतलब यहां पर दो इंटरमीडिएट बन सकते हैं. ये एक इंटरमीडिएट
ये दूसरा इंटरमीडिएट। तब जब सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट बनते हैं, उनमें से जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर होगा। आई बात समझ में? ये भी एक इंटरमीडिएट है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक। ये भी इंटरमीडिएट, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन। सो व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट्स product is the major product. Done. But when there is a single intermediate, and due to that single intermediate multiple products are forming, then the most stable product will be the major product. आई बात समझ में? लिख लेता हूं इसको गोल्डन रूल के हिसाब से, लिख लेते हैं इसको, लिख लेते हैं। When there is a series of intermediate, then the product formed from the most stable intermediate is the major product. Is the major product. ये ध्यान दीजिएगा, is the major product. And if the reaction proceeds through a single intermediate, then the most stable product is the मेजर प्रोडक्ट। चलिए इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, देख लेते हैं एक एग्जांपल। Let us go for an example for the second case. For example, CH3 CH double bond CH CH2 Br. Done. To this, if I'll attack with a methanol, देख लेते हैं जब हम लोग मिथानॉल अटैक करेंगे तो क्या होगा। इस केस में ब्रोमीन निकलेगा पहले। जब ब्रोमीन निकलेगा तो पहला स्टेप में ये आरडीएस बना, तो क्या क्या इंटरमीडिएट बन रहा है मैं यहां लिख लेता हूं पहले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। क्या इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं? रीअरेंज होगा यार, यहां पर डिलोकलेशन होगा, डिलोकलेशन होगा तो कैसे होगा, ये यहां आ गया तो क्या बना यहां पर CH3 CH प्लस CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह पर ये डबल बॉन्ड हो गया। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्लियर? दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट संभव है, वही एक चीज, मिथानॉल ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा, H प्लस फायर करेगा। मिथानॉल ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से अटैक करेगा, H प्लस फायर करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OMe। क्या इसमें सिस ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सिस ट्रांस
आइसोमर बन रहे हैं। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH OMe CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर सिस ट्रांस की कोई चांसेस नहीं, ना ही कोई गुंजाइश है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कायरल कार्बन है। क्लियर? अब ये बात है, अभी सवाल ये है कि यहां पर सिस ट्रांस मेजर बनेगा या रेसमिक मिक्सचर मेजर बनेगा। आई बात समझ? यहां पर सिस ट्रांस मेजर बनेगा या रेसमिक मिक्सचर मेजर बनेगा। तो सवाल यह है, आप लोग देखेंगे कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कौन है। जहां आप लोग गलती कर लेंगे, गलती क्या करेंगे, आपको लगेगा कि ये दोनों इंटरमीडिएट है, पर माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट these two are not intermediates. Resonance structures are only imaginary. The resonance hybrid is the intermediate. यहां पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो सिर्फ इंटरमीडिएट है। आई बात समझ में? ये इंटरमीडिएट है, ये दोनों स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, और इमेजिनरी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग लिव्ड है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस है सिंगल इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। इसका मतलब हम लोग प्रोडक्ट देख के ही पता चल लगाएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देख लीजिए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और ये 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 1। इसका मतलब सिस ट्रांस वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा वही क्या होगा, वही होगा मेजर, वही होगा मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के डिस्कशन का। नेक्स्ट our next discussion is factors affecting SN1 reactions or factors with the degree of SN1 reaction। पहला फैक्टर डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देख लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास एसएसिन पड़े हुए हैं, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये एक्स लिविंग ग्रुप। हम लोगों को पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो एक कोई चीज अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है वो बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है तो SN2 दिखाएगा, वीक है SN1 दिखाएगा। क्लियर? अगर उस कॉन्सेप्ट का और वो जो रिएजन हम लोग लिए उसका बेसिक कैरेक्टर डोमिनेंट है तो E1 दिखाएगा या E2 दिखाएगा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेंट SN1 SN2, बेसिक कैरेक्टर डोमिनेंट E1 E2। ये जो चीज अभी हम लोग बता रहे हैं इसको हम लोग पूरा एंड में SN1 SN2 पूरा जब खत्म होगा उसका एनालिसिस लेंगे। सिर्फ ये बताने के लिए आपको अभी बताया कि अगर कोई भी फैक्टर हो, सॉल्वेंट फैक्टर हो या न्यूक्लियोफिलिक डोमिनेंस या बेसिक डोमिनेंस, ये सारे फैक्टरों से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग ध्यान देते हैं डिसाइड करने के लिए कि एक रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म में जाएगा, वो है डिग्री। डिग्री ऑफ ए गिवन सबस्ट्रेट और गिवन रिएजेंट डिसाइड्स द मैकेनिज्म, इट इज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि यहां पर क्या बीटा हाइड्रोजन बीटा सब्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या है दूसरे फैक्टर, सॉल्वेंट फैक्टर, ये सारे फैक्टर बाद में आते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट किसको हम लोग देते हैं, डिग्री को। तो पहला डिस्कशन हमारा होगा क्या, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। देख लीजिए ये जो एनालिसिस हम बताएं ये पूरा एंड में होगा एनालिसिस, ताकि यार आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ आपको ये सवाल रिपीटेशन से। CH3 यहां पर X, CH3C, CH3H यहां पर X, CH3 CH2 यहां पर X, CH3X। देख लीजिए ये जो है यहां से X निकला तो ये क्या बनेगा, -1 के निकलेगा, यहां पर प्लस। ये X -1 के निकल गया यहां पर प्लस, ये X -1 के निकल गया यहां पर प्लस, ये X यहां से -1 का निकल गया यहां पर प्लस। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा रेट कौन दिखाएगा SN1 के लिए। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हुआ
फिर ये सेकेंडरी हुआ, फिर ये प्राइमरी हुआ, और ये मिथाइल कार्बोकैटायन बना। ठीक है, और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? टर्शियरी। तो रेट किसका ज्यादा होगा? टर्शियरी का। फिर कौन? सेकेंडरी। फिर कौन? प्राइमरी। याद रखिए मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो SN1 रिएक्शन दिखाता नहीं है। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं, क्राउडिंग अराउंड द कार्बोकैटायन सपोर्ट्स SN1। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना SN1 होगा, इसलिए टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, आई कैन से दैट क्राउडिंग सपोर्ट्स। ऐसा लिटरेचर में नहीं लिखा गया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्राउडिंग सपोर्ट्स SN1 रिएक्शन, मोर क्राउडिंग मोर SN1। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर इज इफ बीटा ब्रांचिंग is more, then rate of SN1 reaction is more. Example, CCCX। क्या जानते हैं आप इसको? हम लोग अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा कहते हैं, फिर डेल्टा, ओमेगा ऐसे आते हैं। फिर C यहां पर एक डेरिवेटिव x, फिर C यहां पर एक डेरिवेटिव x। यहां देखिए, यहां पर बीटा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट। इन तीनों में से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? सबसे ज्यादा रेट ऑफ SN1 कहां पर होगा? यहां पर। रेट ऑफ SN1 विल बी मोर इन दिस केस, दिस विल बी हैविंग मोर rate for SN1. Rate of SN1 will be more. Why? Because there is beta branching. Beta branching ज्यादा होने से क्या फायदा हो जाएगा? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए ये वाला दिया गया है, CH3 CH। देखिए यहां पर कैसे हो गया ज्यादा रेट, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर यहां से निकलेगा s माइनस बन के, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। ये माइनस बन के निकला तो यहां पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस बन के निकला तो यहां पर प्लस आ जाएगा। आई बात समझ में? ये भी तो है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये भी तो है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये भी तो है प्राइमरी कार्बोकैटायन, पर इसमें रेट कैसे ज्यादा हो गया? ध्यान दीजिए। पहले ये और ये एग्जांपल लेके देख लेते हैं। पहले CH3 CH, ये CH2 प्लस। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? CH2 प्लस। क्लियर? इजी। और इसको लिखते हैं CH3 CH3 कन्वर्ट वाला कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, CHX CHX। यहां पर देखिए, पहले इस कार्बन में ये क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। जब यहां से x निकला, x माइनस करके निकाल देते हैं, यहां से x निकाल देते हैं, तो फिर यहां क्या बना? CH3 CH CH, ये प्लस, बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। यहां पर CH3 CH CH प्लस, बॉन्ड एंगल कितना वाला? 120 डिग्री, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 था। क्लियर? अब चीज मार्क कीजिए, पहले ये sp3 था, इसके चारों तरफ कम क्राउडिंग थे, ये 109 डिग्री 28 मिनट में था, इसके ऊपर कम स्ट्रेंथ थे,
यहां 120 हो गया, स्ट्रेन रिलीज हुआ, यहां पर एंगल स्ट्रेन रिलीज हुआ, एंगल स्ट्रेन रिलीज्ड। आई बात समझ में? जबकि यहां पर क्या हो गया, ये भी वही sp3 था, ये 120 हो गया, एंगल स्ट्रेन रिलीज हुआ, पर यहां पर देखिए जब ये था तो क्राउडिंग की वजह से इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेन थे। यहां भी एंगल स्ट्रेन रिलीज हुआ, यहां भी एंगल स्ट्रेन रिलीज हुआ, but angle strain released is more here because of this crowding। आई बात समझ में? तो बीटा ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा वो क्विकली लिविंग ग्रुप दे के 120 डिग्री मतलब sp2 हाइब्रिडाइज में आने की कोशिश करेगा ताकि वो एंगल स्ट्रेन से रिलीज होगा। सो मोर द बीटा ब्रांचिंग, मोर विल बी द रेट ऑफ SN2 sorry, more will be the rate of SN1 reaction। Done। Next factor, the next factor is before going to one more factor, just help me in a question. What is the question? X X X 1 2 3। अब बता दीजिए इसमें who will have more rate? क्या ये अल्फा, ये बीटा, दो सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या ये अल्फा, क्या ये अल्फा, ये बीटा, बीटा में कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक दो, ये बीटा, दो सब्स्टिट्यूएंट्स। एक काम करते हैं, आपको थोड़ा क्वेश्चन आसान बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं ताकि आपको कंपैरिजन में मजा आ जाएगा। ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटे में कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये अल्फा, ये बीटा, कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये बीटा में एक दो तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर रेट, सो 2। ये देख लीजिए, आपके लिए लिख लेता हूं, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटे में दो सब्स्टिट्यूएंट, ये बीटा में एक दो तीन सब्स्टिट्यूएंट, तो रेट कहां पर ज्यादा हो जाएगा, 2 देन 1 फिर 3। 3 में तो SN1 ही नहीं होगा, शायद आपको याद होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रिज वाला केस है, SN1 नॉट पॉसिबल। डन। थर्ड फैक्टर की ओर जाते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमेशा याद रखो बेटा, weak nucleophile supports SN1। एग्जाम्पल वीक न्यूक्लियोफाइल का हम लोग ले सकते हैं वाटर, इथानॉल, मिथानॉल, ठीक है, ये प्लेस द मेजर रोल। अगर वही इथानॉल अगर ऐसा हो गया इथॉक्साइड, और मिथानॉल हो गया अगर मिथॉक्साइड, तो यहां पर कौन अटैक करेगा, ETO माइनस, MEO माइनस, ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल सपोर्ट SN2, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल विल सपोर्ट व्हाट, SN1। सो वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट्स और फेवर्स SN1, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट्स और फेवर्स SN2। डन। एक चीज देख लीजिए आप लोग, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां से अटैक कर सकता है, बैक या तो फ्रंट। क्लियर? इन केस ऑफ SN1 मतलब जब RX से X माइनस निकलता है तो R प्लस बनता है, यहां से न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये अटैक कर सकता है इधर फ्रंट में नहीं तो बैक में, तो हमको इधर RNU मिलेगा नहीं तो ऐसे कुछ मिलेगा, हमको रेस्मिक मिक्सचर मिलता है, हाँ या ना बेटा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स और इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑकर्स
if this is optically active, and if a optically active products are formed, then inverted products are more dominant than the retention product, because ये यहां से निकलते निकलते न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देते हैं, क्योंकि अगर भी निकल भी गया ना, वो आसपास वाले विसिनिटी में रहेगा और लिविंग ग्रुप कहीं दूर नहीं जाएगा, इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट पीछे से अटैक इज मोर डोमिनेंट देन दी आगे से अटैक, राइट? सो इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स आर डोमिनेंट देन व्हाट? रिटेंड प्रोडक्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द SN1 रिएक्शन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. देख लीजिए, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ solvent. How does nature of solvent affects? Look, polar protic solvent favors SN1. Why? Because polar protic solvent not only helps in breaking the bond between the living group and the carbon, but also supports the stability of the carbocation formed and the living group formed. कैसे? मान लीजिए ये सीन कुछ ऐसा, C, इसको R लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में सुविधा होगा. और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल पानी ले लीजिए. पानी के दो एंड्स हैं, पॉजिटिव एंड्स भी है, नेगेटिव एंड्स भी है. तो क्या हो जाएगा? यहां पर पानी है, पानी ये पार्शियली नेगेटिव हो रहा है, ये पार्शियली पॉजिटिव हो रहा है जब टूट रहा है. तो पानी के जो पॉजिटिव एंड है, तो ये क्या करेंगे? इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यहां का जो ये पॉजिटिव एंड ना, पानी का जो नेगेटिव एंड है, इसको अटैक करेगा. ये बॉन्ड यहां से टूटा तो क्या बना? यहां पर R प्लस प्लस, मतलब पानी का नेगेटिव पार्ट इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं. ठीक है, और वैसे ही लिविंग ग्रुप का पानी का पॉजिटिव पार्ट उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं. वाटर पॉजिटिव पार्ट स्टेबलाइज दिस. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट not only helps in breaking this bond, but also helps in stabilizing the carbocation forms, So polar protic solvents helps in SN1 or favors SN1. One more thing बेटा याद रखो कि deciding factor of mechanism is first degree, second nucleophile, third beta branching, and solvent rarely decides the mechanism. Solvent is just a support system बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर में नहीं है, सिर्फ बाय एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं. सॉल्वेंट इज जस्ट ए सपोर्ट सिस्टम. क्लियर? जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? डिग्री, न्यूक्लियोफाइल, फिर बीटा ब्रांचिंग. दीज सॉल्वेंट्स आर जस्ट ए सपोर्ट सिस्टम. और हम लोग अभी इससे पहले हम जो न्यूक्लियोफाइल का एनालिसिस कर रहे थे, उसका और एक एनालिसिस कर ही लेते हैं. देख लीजिए कैसा एनालिसिस है, एक ध्यान दीजिएगा. कैसे पीपीएस काम करता है. मान लीजिए हमारे पास एक चीज है सोडियम फ्लोराइड और सोडियम आयोडाइड. अभी इसमें से फ्लोराइड और इसमें से आयोडाइड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल. और एक पीपीएस ले लिए, पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पानी ले लिए. तो क्या हो जाएगा? यहां Na प्लस बनेगा, पानी का H2O का नेगेटिव पार्ट इसको अटैक करके इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और हम इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन, और पानी के केस में हम इसको कहते हैं हाइड्रेशन. इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना डिसॉल्व होगा ये पानी में. याद रखो, जितना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी. फिर यहां से क्या निकलेगा? F माइनस.
F माइनस छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है ना बेटा, उसके छोटे साइज के कारण सबसे ज्यादा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन F माइनस में होता है। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी निकलेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलाइज होगा पानी में। ये जितना स्टेबिलाइज हुआ, स्मॉल चार्ज के कारण ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन होगा। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेटेड सिस्टम में F माइनस का साइज लार्ज है। साइज लार्ज, nucleophilicity is what? Attacking speed. Nucleophilicity decreases due to movability. मतलब क्या है? Due to less mobility भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्पीड ऑफ अटैक घट गया, क्योंकि ये मोटू हो गया। जबकि Na माइनस में क्या होता है, पानी लगाए वही Na प्लस हुआ, पर I माइनस के केस में ध्यान दीजिए सॉल्वेशन कम ही होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। क्यों? I माइनस का साइज काफी बड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मोबिलिटी कुछ ज्यादा ही रहेगा, इसलिए इसका I माइनस साइज इज स्मॉल इन PPS, especially in water. So nucleophilicity increases due to more mobility, right? So NaF माइनस है, NaI माइनस है, इनमें से कौन सपोर्ट करेगा ज्यादा SN1 के लिए? I माइनस। क्यों? क्योंकि it is having more nucleophilicity than in comparison to F minus in water. F minus in water is bit heavy, more size, less movement, less heavy, less size, more movement, more hydrogen energy, more solubility, less hydrogen energy, less solubility. Attack of this nucleophile, aqueous nucleophile of I minus over water, over the electron deficient carbon is more. Clear? This analysis also plays a major role. Next factor, nature of living group. Next factor is nature of living group. Is nature of living group. देखो, वो SN1 हो या SN2 हो, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप हो then it supports the SN1 mechanism. So I can say good living group supports SN1 as well as SN2. जब SN2 के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। Good living group supports SN1 reaction. Nature of living group. A good living group supports, favors SN1 and also SN2. Good living group supports SN1 and also SN2. For example, RI, RBr, RCl, RF. So iodine is the better living group. Weaker bases are good living group. So weaker the base, it is a good living group, isn't it? So we discussed about tosylate ion, triphelate ion. Do you remember? Nitrogen, water, ammonia. These are very good living group. Weaker the base, good living. Ammonia is not that good living group like that of nitrogen and water. So nitrogen and water are a very, very good living group. Nitrogen is the best living group ever we have studied. Weaker the base, living nature is more. Okay. For example, there is a technical error in this type of concepts. CH2 double bond CH, single bond X is there. Will it serve as a good living group? No. Why? Because due to conjugation, there will be delocalization, due to which there will develop a PDCH. What is PDCH? PDCH is partial double bond character. It will develop a partial double bond character, due to which
leaving this group will be difficult. How? See, it will have CH2 minus single bond CH double bond X plus. Now it developed a partial double bond character. Cracking this or breaking this bond becomes difficult. एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर. क्या है वो क्वेश्चन, देख लेते हैं. How is the question? Look here. अगर हमें कुछ ऐसा मिला, सवाल यह है कि इनमें से कौन ज्यादा SN1 रेट दिखाएगा. रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 कहां पर ज्यादा होगा. यहां अगर यहां से x अगर -1 के निकल जाता है तो यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज. यहां x अगर -1 के निकल जाता है तो यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज. यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. पर प्रॉब्लम यह है कि इस लोन पेयर की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. क्लियर. डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से इसको तोड़ने में हमको डिफिकल्टी आ जाएगा. क्लियर. ये यहां डबल बॉन्ड, ये यहां पर आ जाएगा, इसको तोड़ने में डिफिकल्टी हो जाएगा. सो ये 1, ये 2 will have more red than that of. Okay, easy. So my dear students, in the next class I will discuss about SN1 of alcohols and SN1 of ethers along with Lucas test. Till then, bye bye, take care.